question that this returned independent candidate is taking a decision on his own, while we're basing the entire argument on the right of vote of an electorate. So there are millions of people who voted for this gentleman to join PTI, and he, in his discretion, decides to join somebody else with a different manifesto, whatever. Is there, this sounds very odd actually, that this one man has just decided to go some other direction. But one has not. The reality is... And he could have gone, maybe, suppose what if he joins PMLN, or what if he joins, he has a choice. मैं hypothetical सवाल पूछना, what if he joined... Let me respond both hypothetically and factually. वो जो फिर जो सारा हमारा argument है कि voters का right protect करें, electorate का right protect करें, हमने तो candidate को vest कर दी सारी power. कैसे reconcile करते हैं? ये पावर्स उनको हासिल इसलिए नहीं है कि अगर वो ऐसा करेंगे, एक पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी में जाएगा तो डिफेक्शन क्लॉज 63 में आएगा। वो बात की बात है, अभी नहीं, अभी वो तो पार्टी हेड की डिस्क्रेशन होती है। मैं एक मिनट अर्ज करने दें मुझे। ये राजा साहब, ये बड़ा डेंजरस होगा जी आइंदा के लिए जी। यू आर एक्सपेक्टिंग दिस कोर्ट टू स्टैम्प समथिंग कि आइंदा के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के दरवाजे खोल दिए जाए। नहीं, बिल्कुल ना। वोट वो किसी एक नाम पे लें। Now either you completely tell the truth. तो मुझे अर्ज करने यहाँ पे फातिमा जिन्ना के इलेक्शन से लेके आज तक see people have been robbed. So either say that people were robbed in 8 February. बात नहीं करना चाहता which will attract the comment that this is politics. I want to remain purely in constitutional law and respond to my Lord Justice Afridi's question. Sir, I would submit that the Constitution envisages that independents will join or may join political parties, and therefore when a person declared an independent candidate goes to the electorate seeking votes, the electorate knows that this person upon being elected may or will join some political party. So they trust that person and they allow him that latitude, that authority to get their Here votes. I'll just ask one question. When they won as independents, what was preventing them from joining PTI? Please tell me again. If you've answered it already, I missed it. There were two reasons. One was that there was doubt that the legal impediment कोई नहीं था. नहीं. Section 94 key explanation was still standing in front of us, and we were worried that we may be declared not a political party. Section 94 की explanation. Rule 94 की explanation. Rule 94 पे आप rely कर रहे हो. सर एक मिनट सर. अगर उसको पढ़ ले आप तो उसमें एक मिनट सर. पढ़ ले उसको. नहीं सर एक मिनट ठहर जाइए. वो रूल पढ़ ले. मेरी गुजारिश सिर्फ ये सुन लें. 94 पढ़ ले. Your Lordship. इनका मतलब है समझेंगे बेहतर अगर हम पढ़ लेना. जी. तो उसमें तो SIC भी आएगी. पढ़ ले जरा. इसमें आप voter को ultimately it is the will of the voter. So even for an independent candidate, the voter who has voted for the independent has authorized that candidate. 94 जी. आप rely कर रहे हो. जी. For the purpose of this rule, the expression political party means a political party to which a symbol has been allocated by the commission. Now there is a narrow reading. आपका कहना ये है कि आप इस रूल से जो कि legislation भी नहीं है, जो constitution में नहीं है, उसके डर से आपने सारा कुछ किया और पीटीआई को अबैंडन कर दिया. अबैंडन नहीं किया सर, हमने इसको चैलेंज किया, हमने हाई कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन गए, सुप्रीम कोर्ट गए, बट देन मैटर्स ओवरटुक अस, द इलेक्शन हैपेंड, वी हैव 3 days टू डिसाइड. जब आपने ऐसी लूज बॉल खेलेंगे ना, हम सुप्रीम कोर्ट गए, बताइए कहां गए, ये ना कहिए तो आप नहीं गए सुप्रीम कोर्ट. इसको रिजेक्ट होगी ना, हमारी वापस हो गई थी. अभी मैंने वापस हो गई तो वो एक दफ्तर में किसी ने बैठे, आपने अपील नहीं फाइल की. सर उसकी सर्कमस्टेंसेस ये देखिए ना, कम से कम लेट्स फॉर अ लॉयर टू यूज करेक्ट टर्मिनोलॉजी तो हम कर सकते हैं ना. ये कहना सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ये बिल्कुल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पे आपको किसी ने मना किया. द सुप्रीम कोर्ट, ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सरसाइज जुडिशियल पावर. राजा साहब, किसी ने आपको किसी ने डोंट हैव टू एग्री, दैट्स अ फैक्ट. सो द सर्कमस्टेंसेस वर सच दैट अभी सर्कमस्टेंसेस पे आ जाते हैं कभी. ये जरूरी है टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस. क्या सर्कमस्टेंसेस है कि आप सुप्रीम कोर्ट के गेट में तो एंटर हो सकते थे, नहीं सर, एक मिनट सुन ले, रजिस्ट्रार तक जा सकते थे, लेकिन उस रजिस्ट्रार के ऑर्डर के खिलाफ जो लॉ ने, रूल्स ने रेमेडी प्रोवाइड की, अपील की, आज भी आपको किसी ने मना नहीं किया. इसकी वजह से हम डिनाई कर देंगे द राइट टू रिजर्व सीट्स टू करोड्स ऑफ वोटर्स हु हैव वोटेड. आप लेना नहीं चाहेंगे, हम कैसे देंगे? क्यों नहीं लेना चाहेंगे? दैट राइट हैज क्रिस्टलाइज्ड. अगर आप लोग गलत तशरीह करें, खुद तशरीह गलत नहीं की हमने, हम क्या कर सकते हैं? सर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का दरवाजा खटखटाया. इलेक्शन कमीशन इज अ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. मान लीजिए उनका फैसला अगर आप उससे खुश हैं, देयरफॉर उन्होंने कहा कि आप इंडिपेंडेंट हो. वी हैड नो चॉइस देन बट टू कंटेस्ट
contest the election as independent. We had different वो तो मैं मान ली बात, ठीक हो गया। जब जीतने के, मैंने आपका सवाल ये नहीं था कि आपके कैसे कंटेस्ट किया, मैंने कहा आप जीत गए, ठीक है, जीत गए। अब सवाल आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। सवाल ये था कि अब जो जीते हुए कैंडिडेट से, अगर वो उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था सामने जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था पार्लियामेंट में, ठीक है, एक और पार्टी थी उसका नाम था पाकिस्तान तहरीक PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये दो पॉलिटिकल दोनों सर सुन, अब मैंने सवाल खत्म नहीं किया ना। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है, अगर उनकी नहीं थी कोई पोजीशन पार्लियामेंट में, इनकी भी कोई पोजीशन पार्लियामेंट में नहीं थी, दोनों एट पार थे, चले हम ये भी मान लेते हैं दोनों एक पार थे, तो आपने इंतखाब PTI का क्यों नहीं किया? आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब क्यों किया? मेरे हिसाब से आपका बहुत अच्छा केस हो सकता था अगर आप PTI का इंतखाब कर रहे हैं। और ये बार बार आपको कह रहा हूँ, कल ही अगर इनका मूड इनका चेंज हो गया, जो लोग कंट्रोल करते हैं सुन्नी इंतजाम काउंसिल में, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो ये अच्छी, आप इधर जाना चाहे तो उधर चले जाते। अब आपने कहा क्योंकि एक रूल बनाया था किसी ने जो कि जिसकी कोई लीगल वो नहीं है, पार्लियामेंट नहीं बनाता है रूल, सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, उसमें एक एक्सप्लेनेशन आ गया था, उसकी वजह से मैंने कहा जी एंड इट इज द लॉ एंड द इलेक्शन कमीशन had upheld it and the high court had refused to interfere with it and we had come to the Supreme Court, the registrar had returned it. Was that the Supreme Court judgment denying the election symbol was being interpreted by the मुझे अर्ज करने दे, मैं अर्ज करूं, बिल्कुल क्वाइट सो that's the context, that's the whole basis on which the matter proceeded. But you see, Mr. Salman Raja, we are drifting from your submission that the proviso is an explanatory and is a sort of independent provision and not a true proviso. You see, the way I look at it is that this whole concept of reserved seats for women and minorities is for a certain purpose.